Okay. A very good afternoon to everyone present virtually with us. I, Assistant Professor Gayatri Nayak of KBP Degree College, Thane, welcomes you to the National Webinar Series Career Shastra Session 2. We are conducting this program in association with Institute of Cost Accountant of India, Thane. We are honored and privileged to go hand in hand with such a prestigious organizations for the betterment of career of students. I take this opportunity to welcome guest of honor, Shri DG Vanjare Sir, Officer WIRC ICAI CM, ICMAI. Secondly, CMA Harshad S. Deshpande Sir, Chairman of ICMAI Thane. Third, CMA Binoy Thomas Sir for expert talk. Moving ahead, Moving ahead with the opening note, our institution is extremely proud to present today guest of honor, Sir CMA Harshad S. Deshpande Sir. Before introducing, let me have a brief introduction about Sir. Sir is a practicing cost and management accountant and partners in Measures Harshad S. Deshpande, an associate firm of practicing CMA, rendering professional services in the field of cost and management accounting, finance, and direct tax for more than 15 years of experience. Talking about Sir's educational background, Sir is a fellow member of Institute of Cost Accountant of India, Company Secretary from Institute of Company Secretaries of India, Certified Information Systems Auditors, Chartered Management Accountant from CIMA UK, Insolvency Professional under IBBI, Registered Valuer under Company Act IBBI, Qualified Independent Director as per Company Act, Masters in Commerce from Pune University. Moving ahead with the Sir's professional career is into advising number of joint Indian companies and multinational companies and conducting indirect taxes, GST, costing, finance, insolvency laws, management accounting, valuations, and advisory services for these companies. Management accounting and ABC. Sir has vast experience in costing, management accounting, and profitability analysis vertically. Sir has been instrumental in implementations of SAP Co for a number of clients and also providing retrainership services. Sir also had undertaken projects for activity-based costing and activity-based management. Sir has completed more than 100 valuations assignment as registered valuer for various purposes like for further issue of shares, mergers, and amalgamation, insolvency, liquidation, strategic decisions, etc. for entities in various sectors. Sir has handled many assignments as IRP, RP, liquidator for corporates having exposures from 1 crore to 2000 crore. Sir has successfully resolved cases. Now, talking about the academics and training, Sir is closely associated with reputed academic institutions in around Pune, such as Swingard Business School, MIT School of Business, and international B schools like WLC College as visiting faculty. Sir used to conduct corporate training program for companies like IPCL, Reliance, and also represented Pune chapter of ICAI and WIRC of ICAI on various forums. So we are very proud to present you. Over to you, sir. Thank you for being with us, sir. Thank you, Gayatri Madam. And it is my pleasure to be uh, on this wonderful day of interacting with students who are aspiring to make a career in finance. I am thankful to the college for giving us this opportunity to be with you and tell the students what the career choice, what the career option they are having. So, friends,
Uh, really, I'm thankful to all of you for joining in good numbers. So, let me start with my small presentation. So, uh, a journey towards success, CMA Career Awareness Program. So, friends, to start begin with this session, I would just like to, Madam has already introduced, of course, me. So, if any query doubts are there, you can just connect me on the social media. If your any of the query get unresolved, okay. Uh, so, friends, what this course is all about. So, this course basically it is this Institute of Cost Accountants of India. It's the institute formed by the Act of Parliament. So it was being, in fact, before independence, since 1944, this institute is in existence. Then it got formally recognized as a by Act of Parliament in 1959 when this Parliament passed the act called as the Institute of Cost and Works Accountants Act 1959. So ICWA, formally it was known as ICWA. So it was being renamed as the Institute of Cost Accountants of India, ICAI, on 1st February 2012. So the institute has a three-tier structure. It has got headquarters at Kolkata, and there are four regional councils. There is a four regions of Western, Eastern, Southern, and of course Northern. So we fall under the Western Territory, which consists of five states: Maharashtra, Goa, Chhattisgarh, Gujarat, and Madhya Pradesh. There are 96 chapters spread across the country, and there are also nine overseas centers. So currently, we are having around 70,000 plus members and over 5 lakh registered students. The members who are qualified this exam and get the membership of the institute, they are recognized as a ACMA or FCMA. ACMA is associate member of the institute and FCMA is a fellow member. Fellow member means after having the experience of more than 5 years, you can get a fellowship uh, as a recognition. This CMA Institute is the largest CMA body in Asia, and it is second largest body in the globally. So it is one of the dominant force when it comes to the management accounting and cost accounting across the globe. So friends, the big question always comes to mind is that why CMA? What why we should go for this as a career? Okay, so basically we have identified why we should do a CMA. That first of all, industry needs the skilled and employable professionals. That is what the need of the hour is. You can see that days to come, the vision of the government is very clear. They want to ease away with the compliances and focus on the just a few days back, I heard that there was a GST audit which has been relaxed by the government. So the days to come, this public accounting, which was being one of the premier area or prime area of the practice or job for the finance professionals. So gradually it is going down, and whereas the management accounting, so the that is what is being increased because today's days, the what the industry needs is not the person who can do the costing or who can do the accounting and prepare the balance sheets. It is not required because the technology has taken care of. You just enter a transaction in Tally, and automatically the balance sheet emerges. So there is no need of doing any this kind of a stuff. But what the industry requirement is that they need analytical skills. They need a people who will understand the business, who can give them the consultancy in with respect of various financial and business decisions, and who can make the businesses more profitable, more sustainable. So that is what this profession is all about. This profession is not only a commercial or a finance or accounting related domain, but it's a techno-commercial profession. You can see that in our syllabus also there are certain subjects which are pertaining to the strategic management, the operations management, the performance management. So this all these ambits of which the business needs, that is there in our course. So friends, this CMA course perhaps is one of the each and every company, we always say that behind every successful decision there is a CMA. So you can find that all these company do have a cost accountants on board. Generally these cost accountants are the backbones of their decision making process. But what do happen is that about the public visibility, so perhaps these people are not so visible.
The reason is also very obvious because the industry want to maintain certain confidentiality. So that information is sensitive, so they would like to not give it in the public domain. So that's the reason you will see that perhaps the visibility of the CMA professionals is less as compared to that. But days to come, we always earlier means we of course do see a lot of movies. So in movies, if you recollect any good movie, what you used to recollect was earlier we used to know who is the hero, who is the heroine, maybe who is the villain. Now the days are there, people are recognizing that who is the director of the movie, who is the producer of the movie, who is the music director, who is the cinematographer, who is the even this choreographer of the movie. So these are the back end people who were never recognized, these days. But as and this technology is improving, you can see that the people are able to recognize the talent behind. So that is how this profession is, that there is always a CMA behind the decision making process. Only thing is that you have to have that the skill sets, and this course Vinay sir is going to take you forward, that how this course is going to make you a better professional who can be cater to the needs of the industry, may it be in academics, may it be in the practice, or may it be in employment. So this is what the profession is. So it has got a very good earning potential also. You can see that the members can both can do a job. In fact, our 80% plus members are doing a job in the corporates in the very good positions. And also we are having a lot of members who can do a different kind of value-added services and do self-employment in the form of doing their private practice. So this consulting, academics, these all options are open once you have that tag of being a CMA. So just to showcase you, these are some of the famous CMAs which perhaps you can just see that there are top names with the top designations, and not only from the private sector, but you can see companies like ONGC, Balmalori, SAIL, then NTPC, this Jubilant Life. So there are not only companies which are from private domain, but also there are PSUs, there are government offices, so where the people are occupying the top positions. So this list is just a small indicator of what kind of people you can follow, and you can aspire to become a professional like this and achieve the excellence. So this is what I would like to convey to you all, that profession is as a serious career option, and you can, of course, you are the best judge that what is suiting best for you. But of course, as a institute side, we would like to take this opportunity to introduce you to this course, which is a fantastic career profession means option for all of you. So this is what I would just like to convey before I conclude. And Binay sir is going to take a detailed session, that how this course is, the syllabus, the content, the opportunities, and the career prospects. So the whole admission process is also going to cover up in a nutshell. So I also request you that if anybody has any doubts, even if this session is over, you can connect us anytime. Our contact details are there with the madam, and we'll be really happy to help you all. So with this, I may express sincere gratitude to the KB College for giving me this opportunity, and I look forward to be with you. Thank you, madam. Uh, yes, such an informative session it was from you, sir. Student must have got detailed insight about ICMAI. Tons of thanks and gratitude to you, sir, for addressing our students. Now, I would like to introduce our distinguished speaker for today, Sir Binoy Thomas, sir. By profession, sir is a practicing chartered accountant at Binoy Thomas and Associate, cost accountant, even visiting faculty at WIRC of ICMAI. Sir is a trainer at ICMAI and IFRS trainer at IMS Pro School. ACCA trainer at Synthesis Learning. Having educational background of Sir is an associate member of the Institute of Cost Accountant of India, diploma in IFRS from ACCA Institute, UK. Sir has completed advanced diploma in management accounting from
CIMA Institute, UK. Sir has also completed certificate courses from ICMAI on concurrent bank audit, GST, and valuations. Sir is a Bachelor in Commerce from Bhavans College, Andheri, Mumbai. Binoy Thomas, sir, over to you, sir. Thank you so much, madam, for the introduction, and I thank KB Patil College also for this opportunity, and I also thank our institute also for this opportunity. So, good afternoon, all students. Uh, I hope you heard the introduction from Harshit sir with respect to what is the cost and management accountancy, what are its characteristics of the course, what are its opportunities, and all. But sir has just given us the introduction. But from here on, I'm going to take you to the entire journey of how to become a cost and management accountant, that is CMA. So, Gayatri madam, can you share the screen? Yes, sir. Yes, sir. We are sharing the screen, sir. Yeah. The previous slide, madam. I can think you can take it from the sixth slide. The previous one and the previous one. Just above. Yeah, perfect. Just go down. Next slide, madam. So, students, as you can see on the screen, Harshad sir has already gave us the institute strength. It is the largest CMA body in Asia and is the second largest CMA body in the world. So our institute, which is from India, is not just the largest body in Asia, but also the largest body in the world, second largest. Next slide, madam. And students, if you see the strength of our institute, the network is spread across the length and breadth of the country. If you see, we have more than 85,000 qualified members. We have already 5 lakh students enrolled with us. We also have our headquarters, not just at Kolkata, but also at Delhi. We have 4 regional councils, students, which is covering the entire chapters of our institute in our country. There are 4 regional councils, that is Western region, Eastern region, Southern region, and Eastern region. And the chapters that we have is 107. 3 more chapters have been added, so we have total 110 chapters. Students, we have even overseas centers. Overseas centers means we have our institute's representative offices outside India also. We have just added 1 more center recently, that is in London. So we have 11 centers overseas. We have 2 centers of excellence. We have 51 support centers and recognized oral coaching centers to support the students to pass this course. And we have across 133 exam center students for you people to appear for the exams and pass the course. Next slide, madam. So now talking about the strengths, Harshad sir had already mentioned some of the strengths, but this is ideally the strength of becoming a cost and management accountant. You just don't provide service. You can be an enabler for the company to grow and especially expand its business. So you can build the cost effectiveness. You can also help the company in governance. You can help the company establish management systems. You can help the company into cost benefit analysis, benchmarking. You can also help the company in product pricing. Students, product pricing, whatever products we buy from the market, how to price the product, what should be the cost of it, what should be the margin of it. So we can help the companies in product pricing. We can also help them in financial management, how to manage the finance, how to manage the funds. We can also manage the company's cost and management accounting. We can help them in accounting, as well as students. We can also help them in auditing. Different types of audits are there: internal audit, statutory audit, cost audit. So different types of audit, students, we as CMA professionals can help the companies and corporates. And the last is the direct tax and indirect tax. This is something that we as professionals are very much aware of. What are the direct taxes laws? What are the indirect taxes laws? And these are the core strengths which make our profession one of the best in our country. Next slide, madam.
मैडम नेक्स्ट स्लाइड. Can you move on? Yeah. So now we are talking about the CMA course in detail. Next slide, madam. Yeah. So first of all, students, what is important to understand is the CMF qualification helps us not only just be skilled. Skilled means you know certain skills, accounting, auditing, taxation, management, accountancy. Not just that, it also helps you to become employable. When I say employable means job ready. आपको अगर किधर भी जॉब करना होगा, सीएमए क्वालिफिकेशन होगा, तो आपको जॉब मिलने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा. उसका रीजन ये है कि ये कोर्स आपको कॉस्टिंग में, अकाउंटेंसी में, टैक्सेशन में, डिसीजन मेकिंग में, कंप्लायंस में आपको एक्सपर्ट बनाते हैं. दिस क्वालिफिकेशन मेक्स यू एन एक्सपर्ट इन ऑल दीज फील्ड्स. एज वेल एज CMA professionals are also very effective in managing the funds. कंपनी का फंड्स को कैसे मैनेज करना है, कंपनी को ग्रोथ कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, ये सारा चीज सीएमए कोर्स आपको ट्रेन कराता है. एंड नॉट ओनली दैट स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू अर्निंग कैपेसिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी वी हैव. अर्निंग ऑल्सो आपको स्टार्टिंग सैलरी काफी अच्छा मिल जाता है. आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म एज वेल एज आप पढ़ाई भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो. यू कैन अर्न while you learn, and this is something where this profession is a unique in itself. So moving on, next slide, madam. Now, what are the features of this syllabus? Now, students, normally we have this confusion whether the syllabus is updated, whether the syllabus is outdated, whether we are going to study something that is relevant to get the jobs. So students, I want to make this very clear. Our course is as per the guidelines of IFAC. IFAC is basically an international accounting body which sets the syllabus contents of all the accounting institutions. So our course, our contents, our subjects are based on the IFAC guidelines, and the skill sets that we focus on is knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So it makes you an all-round professional. And the core pillars that this profession has is on management, how to manage the company's resources, how to give the strategies to the company to grow more and to increase profits, help the company in regulatory aspects, that is regulatory filings, taxation, audits, and then helping in accountancy, that is financial reporting. Our syllabus, students, is also mapped with the curriculum of international bodies. It is also with the UGC curriculum, and also it aligns with the state boards and central boards of our university and colleges of our country. And the most important part of this CMA syllabus, students, is that it is industry oriented. That means industry, जो jobs आपको industry देता है, तो वो jobs का क्या requirement होता है, वो requirement के basis पे CMA का syllabus को design किया है. Next slide, madam. Now, what is the notable feature? Now, notable feature means जो एकदम unique characteristic है ये कोर्स का, वो ये है. पहला चीज तो स्टूडेंट्स ड्यूरेशन. हर स्टूडेंट का ये दिमाग में होता है कि कितने टाइम में ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. आप जब कोर्स शुरू करते हैं, आपको 2.5 to 3 years तक आप ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो. सो दैट इज द ड्यूरेशन. एज वेल एज आप जैसा ये कोर्स पढ़ाई करोगे, उसके साथ आप काम भी कर सकते हो. सो यू कैन वर्क ऑल्सो एंड यू कैन स्टडी ऑल्सो. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, आप ये कोर्स करते वक्त आप दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हो. अगर आपको बैचलर डिग्री करना होगा कंटिन्यू, अगर आपको मास्टर्स करना होगा, so you can do parallelly with the CMA course, so there is no restriction. And also, जैसा आप first and second stage complete करते हो, that stage is foundation and inter, it will make you industry ready so that you can get jobs before you qualify as a CMA final. So CMA होने के पहले ही आपको जॉब मिलने के लिए the course prepares you and gives you the opportunity to work before you become a CMA professional. So next slide, madam. Now, what is the eligibility criteria, students? Very important. What is the eligibility criteria? अगर आपको एक कोर्स में एडमिशन लेना होगा तो क्या क्या आपको कंडीशन फुलफिल करना होगा? तो फर्स्ट, अगर आपने सिर्फ 10th पास किया होगा या आपने अगर 12th पास किया होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप फाउंडेशन लेवल, दैट इज द बेस लेवल, इंट्रो लेवल, आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हो. इफ यू आर 10th पास या फिर आप 12th पास हो.
अभी अगर स्टूडेंट्स आपका कॉलेज चल रहा है, इफ यू आर डूइंग अ बैचलर कोर्स और अ बैफ कोर्स, या फिर आप सीएमए का ही फाउंडेशन आपने क्लियर किया होगा, सीएस का फाउंडेशन क्लियर किया होगा, अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो एंड आपने अगर सीए का इंटरमीडिएट कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया होगा, सो यू कैन टेक अ डायरेक्ट एडमिशन टू द सीएमए इंटरमीडिएट। तो स्टूडेंट्स आपको सीएमए फाउंडेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीएमए इंटर में आप एडमिशन ले सकते हो। सो दैट इज द सेकेंड स्टेज। एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स लास्ट स्टेज होता है, जब तक आप सीएमए इंटरमीडिएट स्टेज कंप्लीट नहीं करोगे तो आप फाइनल में नहीं जा सकते। सो द ओनली वे टू एंटर द सीएमए कोर्सेज, आइदर आप फाउंडेशन में एंटर करो या फिर आप इंटरमीडिएट में एंटर करो। सो फाउंडेशन में एंटर करना मींस आपके पास सिर्फ 10th या 12th का डिग्री काफी होगा फाउंडेशन में एंटर करने को, एडमिशन लेने को कोर्स में। लेकिन अगर इंटरमीडिएट में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपका इंजीनियर कंप्लीट होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग परस्यू भी कर रहे हो तो भी चलेगा। और अगर आपने सीए का इंटरमीडिएट किया होगा, सीएस का फाउंडेशन किया होगा, तो भी आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। एट द लास्ट स्टेज के लिए आपको इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल स्टेज पे आ सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द करिकुलम। इसमें आपको हर एक स्टेज देखो 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है। एक फाउंडेशन कोर्स है जो आपका पहला पार्ट है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा इंटरमीडिएट, थर्ड पार्ट होगा, थर्ड स्टेप होगा फाइनल। तो पहला पार्ट में स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ 4 पेपर स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना है। एक रहेगा इकोनॉमिक्स, जो आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। सेकंड पेपर होगा अकाउंटेंसी, जो स्टूडेंट्स एकदम बेसिक होगा, फंडामेंटल होगा। तीसरा जो रहेगा वो लॉज एंड एथिक्स होगा, समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, एक प्रोफेशनल को क्या क्या एथिक्स मेंटेन करना है। एंड फोर्थ पेपर जो होगा स्टूडेंट्स वो मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स होगा, जो आप 10th 11th 12th से पढ़ के आ रहे हो। सो फाउंडेशन में स्टूडेंट्स वही पेपर्स है जो आपने कहीं ना कहीं तो 10th एंड 12th में आपने पढ़ा होगा। सो दीस आर द ओनली 4 पेपर्स। बट व्हेन यू कम टू द इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स, आपको 2 ग्रुप अपीयर करना है। ये 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स 4 पेपर्स होते हैं। पहले ग्रुप में स्टूडेंट्स 4 पेपर है, फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉज एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 4 फील्ड, 4 एरिया कवर हो रहा है। कॉस्ट का एरिया कवर हो रहा है, फाइनेंशियल का एरिया कवर हो रहा है, लॉ का एरिया कवर हो रहा है, और डायरेक्ट टैक्सेशन का एरिया कवर हो रहा है। अभी स्टूडेंट्स अगर आप ग्रुप 2 में आते हो, तो ग्रुप 2 में स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग का जो प्रोफेशन का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो मैनेजमेंट रिलेटेड हम लोग के सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो आपका जीएसटी हुआ, एंड कंपनी में जो अकाउंट्स बनते हैं और उसका ऑडिट, उसका जो पेपर है वो लास्ट में होता है। तो ऐसा स्टूडेंट्स आपको 2 ग्रुप में अपियर करना है, और दोनों ग्रुप में स्टूडेंट्स, हर एक ग्रुप में 4 पेपर है, तो टोटल आपको 8 पेपर अपियर करके इंटरमीडिएट कंप्लीट करना है। जैसा स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट हो जाता है, फिर आप फाइनल लेवल पे आते हो। फाइनल लेवल अगेन स्टूडेंट्स 2 ग्रुप है, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो ग्रुप 3 में स्टूडेंट्स आप लोग अगेन लॉ पढ़ोगे, लेकिन बट दिस विल बी एडवांस लॉज, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इंटरनेशनल लेवल का होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है कंपनीज में, वो आप पढ़ोगे, एंड डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो आप इंडियन इनकम टैक्स भी पढ़ोगे लेकिन इंटरनेशनल टैक्स भी पढ़ोगे। अब ग्रुप 4 में आते हैं स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कंपनी में जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो आप पढ़ोगे। इनडायरेक्ट टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस, जीएसटी के हर एक लॉज आप डिटेल में पढ़ोगे, एंड एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तो वो पेपर में आप पढ़ोगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट स्टूडेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एक सिर्फ सीएमए प्रोफेशनल कर सकता है, तो वो ऑडिट कैसा होता है, क्या क्या ऑडिट उसमें करना पड़ता है, उसका सारा नॉलेज आपको पेपर में मिल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एक कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आपको क्या क्या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आना चाहिए, तो वो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। एंड बिजनेस वैल्यूएशन, एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है वो भी पढ़ाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स फाइनल लेवल पे आपका सारा एरिया कवर होता है, राइट फ्रॉम फाइनेंशियल, कॉस्ट, लॉज, मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड वैल्यूएशन, सारा चीज स्टूडेंट्स आपका कवर होता है। सो दिस इज द एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर divided into 3 steps containing total 20 papers. It depends स्टूडेंट्स आप लोग कौन से स्टेज में एंटर करते हो, अकॉर्डिंगली आपको उतना पेपर्स देना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन मैडम नेक्स्ट स्लाइड।
Now, students, recently, our institute, with the help of the council members and with the initiative of the immediate past president, we have changed the training facilities for our CMA students. कैसा होता है स्टूडेंट्स, आपको ये ट्रेनिंग इसके लिए दिया जाता है क्योंकि आपको जॉब रेडी के लिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है. बिकॉज स्टूडेंट्स, अदर देन जो आप कोर्स में पढ़ते हो, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इंटरमीडिएट लेवल पे आपको दो ट्रेनिंग दिया जाएगा स्टूडेंट्स. वन इज सैप ट्रेनिंग and second is soft and techno skill training, which will be consisting of 60 and 80 hours. And ये students आपको कोर्स के साथ ही करना है. At the same time practical training मतलब आपको कोई कंपनी में या कोई एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के वहां पे आपको ट्रेनिंग करना है. ये ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप लोग कोर्स कर सकते हो. फाइनल लेवल पे स्टूडेंट्स आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा and वो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ही दिया जाएगा, which is making you eligible for the best jobs in the market. At the same time students, you will also have to do the practical training. And students, ध्यान रहो, practical training students आपका 15 months minimum आपको करना पड़ेगा in order to appear for the final level. I hope is it clear students? So intermediate level पे and final level पे आपको world class training facilities Institute of Cost Accountants of India will provide you along with the course curriculum. Moving on, madam, next slide. Now, SAP training, students, SAP training आपका 60 hours होगा. तो SAP आप लोग ने सुना होगा, आजकल हर जॉब के लिए स्टूडेंट्स, फाइनेंस में अगर आप जॉब के लिए जाओगे, वहां पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपका SAP आपको आना चाहिए. And that is why students, we have introduced this training inside the course by giving you 60 hours of training. तो स्टूडेंट सैप फाइनेंस पावर यूजर कि आपको सैप का कैसे सिस्टम ऑपरेट करना है, सैप का स्टूडेंट्स आपको वीडियोस दिया जाएगा, आपको लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा. एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स आपको सैप का ग्लोबल सर्टिफिकेशन दिया जाएगा टू प्रूव दैट यू हैव डन द सैप कोर्स एट द ग्लोबल लेवल. सो इंस्टीट्यूट का भी सर्टिफिकेट होगा प्लस सैप का भी सर्टिफिकेट होगा. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. And when you talk about students employability and soft skills, students employability मतलब जॉब के लिए आपको क्या काम आना चाहिए, आपके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए. इसके लिए स्टूडेंट्स द इंस्टीट्यूट हैज टाइड अप विद माइक्रोसॉफ्ट. आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप तो करते हो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा जिसमें वो लोग आपको सिखाएंगे वर्ड कैसे आपको करना है, एक्सेल का फंक्शन कैसे ऑपरेट करना है, पावर पॉइंट कैसे करते हो. एंड स्टूडेंट्स वो करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. सिमिलरली स्टूडेंट्स आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके का है, स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ हमने टाई अप किया है जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. एंड द लास्ट इज जो ई फाइलिंग होता है स्टूडेंट्स. ई फाइलिंग मतलब आपको इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करना है, आपको जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, आरओसी का फाइलिंग कैसे करना है, इसका भी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आपको ये 80 आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा. सो सैप ट्रेनिंग plus employability and soft skill training will make you employable and job ready for the market. Next slide madam. Now coming to knowledge support students, आपको knowledge support के लिए the institute is providing you live online classes students. So आपको online class का facility दिया जाएगा. अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो जाता है तो आपको रिकॉर्डेड का भी लिंक या रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिया जाएगा. वेबिनार्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जो भी आप ट्रेनिंग में पढ़ते हो ना तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स दिया जाएंगे, असाइनमेंट्स देंगे, सो दैट यू कैन अप्लाई दो स्किल्स, अप्लाई दो नॉलेज एंड सी हाउ फार आपको ये नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन आता है. सो नॉलेज सपोर्ट इज ऑल्सो गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. नाउ coming to the monitoring and assessment part. So students institute आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपका असेसमेंट लिया जाएगा, मतलब आपका छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा. जो भी अभी मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया, सैप ट्रेनिंग हो या माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग हो, कैम्ब्रिज का ट्रेनिंग हो, ई फाइलिंग, तो इसका सब स्टूडेंट्स आपका क्लास होने के बाद आपका असेसमेंट किया जाएगा. एंड असेसमेंट में स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट जैसे आएगा तो आपको सर्टिफिकेट उसके हिसाब से मिल जाएगा. एंड लास्ट स्टूडेंट्स आपको ट्रेनिंग करना है, 15 महीने का स्टूडेंट्स ट्रेनिंग होता है. ये 15 मंथ स्टूडेंट्स इज मैंडेटरी
टू अपियर इन द सीएमए फाइनल। आपको सीएमए फाइनल में अपियर करना है तो सीएमए इंटरमीडिएट तो पास होना ही है, प्लस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 15 मंथ्स रिक्वायर्ड है, तो ही आप फाइनल में अपियर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। स्टूडेंट्स, ये हमारा रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है, 2019-20 का स्टैटिस्टिक्स है। मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स एडमिशंस ले चुके हैं ये कोर्स में अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट्स 60,000 के ऊपर एडमिशन हुआ है and more than 1 lakh students have already appeared for their CMA exams during the year 1920. So this is the statistics students आप हमारे पास है जो recent admissions and exam appearance का आपको stats दिया। Next slide, madam. This is the pass percentage students, so this is something that is quite encouraging. तो अगर आप देखोगे students, अगर आप foundation में अगर admission लेते हो students, so the pass percentage is close to 80% students, close to 80%. अगर आप इंटरमीडिएट में आते हो स्टूडेंट, स्टिल इट इज वेरी एनकरेजिंग, ऑलमोस्ट 25% आपको पासिंग परसेंटेज है। एंड फाइनल में स्टूडेंट्स ऑब्वियसली डिफिकल्टी तो होगा ही, तो इसके स्टूडेंट्स पास परसेंटेज थोड़ा कम है कंपेयर टू इंटर एंड फाउंडेशन, इट इज नियर टू 19%. So this is a pass percentage students of the December 19 exams which was conducted by our institute. Next slide madam. Now this is the course fees students. I know बहुत सारे students के दिमाग में ये होगा सर course fees क्या है, तो students प्लीज आप लोग देख लो यहाँ पे ये जो इनलैंड फॉरेन है, प्लीज अंडरस्टैंड आपको सिर्फ इनलैंड देखना बिकॉज ये इंडियन रुपीज में दिया है। फॉरेन मतलब स्टूडेंट्स अगर फॉरेन में अगर कोई स्टूडेंट को ये कोर्स करना है तो उनको डॉलर्स में पे करना होगा, बट अगर आप इंडिया में हो तो आपको सिर्फ इंडियन रुपीज में पे करना है। तो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, फाउंडेशन में अगर स्टूडेंट्स आप एडमिशन लेते हो तो आपको 6,000 का रजिस्ट्रेशन फीस होता है। इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स अगर आप एडमिशन लोगे तो 22,000 देना है स्टूडेंट्स। एंड प्लीज अंडरस्टैंड 22,000 भी आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो स्टूडेंट्स, दो इंस्टॉलमेंट होता है, एक 12,000 एक 10,000 का, तो आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल लेवल you can take the admission by paying 25,000 and वहां पे भी स्टूडेंट्स आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दिया जाता है फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। एंड स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप टोटल करोगे पूरा कोर्स का 25 प्लस 22 इज 47 प्लस 653,000 में स्टूडेंट्स आपका एंटायर सीएमए कोर्स खत्म हो जाता है, विच इज even lesser than the interest cost that you pay for taking an education loan from the banks and financial institutions. And students, अगर आप ये फीस को कंपेयर करोगे कोई भी और प्रोफेशनल कोर्स के साथ, स्टूडेंट दिस इज द लोएस्ट अमंग ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेस. So students, this is the fee structure of the course for all the levels. Next slide, madam. Now, this is again students a facility given by the institute कि अगर students को ये कोर्स करना है बट अगर कोई डिफिकल्टी है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली अगर चैलेंज है, अगर आपको फाइनेंशियली अगर कुछ डिफिकल्टी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट आपको एक स्कीम दिया जाता है, आपको एक स्कीम भरना पड़ेगा, एक फॉर्म आता है इंस्टीट्यूट को, तो आपको फॉर्म भर के इंस्टीट्यूट आपको स्कीम दिया जाता है कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक होगा तो फिर भी आपको कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड, दे विल गिव यू सम कंसेशंस। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कुछ मेरिट है, अगर आप रैंक होल्डर हो, ऐसा कुछ अगर आपके पास मेरिट है तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट किया जाएगा। इवन स्टूडेंट्स आपको वेवर दिया गया है फीस का, अगर आप फिजिकली चैलेंज हो, अगर आपका कोई भी फिजिकली चैलेंज है तो डेफिनेटली आपको वेवर दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी दिया गया है स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड। आपको करना सिर्फ ये है कि अगर आपको स्कीम लेना है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्म भर के इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करना है, इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू टू एंश्योर दैट आप ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करो। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नाउ व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स? कैरियर अपॉर्चुनिटीज हर्षद सर ने बहुत शॉर्ट में क्रिस्प में बताया, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में स्टूडेंट सिर्फ एक नॉर्मल जॉब नहीं है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, स्काई इज द लिमिट। सो लेट्स गेट इनटू द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली आप कोई भी कोर्स करते हो तो आपको एक ही पता है स्टूडेंट्स, दैट आपको जॉब करना है, दैट्स इट। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको कंपनी जॉब देता है तो आप जॉब कर सकते हो, अदरवाइज आपको जॉब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स ये कोर्स आपको 3 ऑप्शन देता है स्टूडेंट्स। एक ऑप्शन है कि आप सर्विस कर सकते हो। स्टूडेंट सर्विस मतलब आप जॉब कर सकते हो, इंडस्ट्री लेवल पे आप जॉब कर सकते हो, एज वेल एज एजुकेशन। स्टूडेंट्स एजुकेशन आप पढ़ा भी सकते हो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में,
इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको खुद का प्रैक्टिस करना है एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आप खुद का फर्म एस्टैब्लिश कर सकते हो, आप आपके अंडर एम्प्लॉयज को रख सकते हो और आप उनके बॉस बन सकते हो, आप खुद का फर्म कर सकते हैं। स्टार्टअप स्टूडेंट्स, अगर आपको खुद खुद का नया कंपनी अगर शुरू करना होगा, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट सीएमए कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ब्रॉडली द ऑप्शंस दैट इज अवेलेबल फॉर द सीएमए कोर्स। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो स्टूडेंट्स, बहुत लोग ऐसा रहेगा, नहीं सर मुझे जॉब ही करना है, सर मुझे और कोई चीज नहीं करना है, अभी के लिए मुझे कोर्स खत्म करके जॉब करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जॉब करना है, पहला स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस द पब्लिक साइड, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के जो कंपनीज के जॉब्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं। वहां पे स्टूडेंट्स जो भी एरियाज अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं, cost and management accounting, finance and accounts, taxation, internal control, treasury and investment, project management, financial analyst, systems analyst, banking, resource management, risk management, students, ये लिस्ट का कोई एंड नहीं है। ये सारा एरियाज में स्टूडेंट सीएमएज आर एलिजिबल, सीएमए एज अ प्रोफेशनल इज रिकॉग्नाइज्ड। आपको ये सारा एरियाज में आप जॉब कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कौन से एरिया में आपको करना है, द चॉइस इज विद यू। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको सीएमए करके अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, देन स्टूडेंट्स उसका भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। यू कैन परस्यू आईएएस, यू कैन डू आईआरएस, यू कैन डू आईएफएस। एंड स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग को नहीं पता है स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्विस बनाया है, दैट इज इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस। स्टूडेंट्स, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए ही है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छा पोजीशन में काम करना है, तो कॉस्ट अकाउंट सर्विस में आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो अगर आपको ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में करना है, तो ओनली टू प्रोफेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट्स, दैट इज वन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेकंड इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो स्टूडेंट्स, आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप वहां पे भी काम कर सकते हो, प्लस यू कैन इवन वर्क इन अ इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस only based on your CMA qualification. So this is students the job opportunities that you have. Now talking about the job roles, students, अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या क्या डेजिग्नेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये सबको ये भी होता है सर मैं मुझे क्या डेजिग्नेशन मिलेगा एक कंपनी में। तो देखो स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम सीएमडी, दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वहां से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर इन फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, हेड ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट एडवाइजर, कॉस्ट कंट्रोलर, मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स, रिसर्च मैनेजर्स, एंड स्टूडेंट्स इवन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप डीन तक बन सकते हो स्टूडेंट्स विद दिस क्वालिफिकेशन। सो इवन स्टूडेंट्स डेजिग्नेशन वाइज ऑल्सो स्काई इज द लिमिट। ओनली थिंग स्टूडेंट्स, आपको स्टार्ट से स्क्रैच करना पड़ेगा, बट आपका जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप ज्यादा हायर पोजीशंस के लिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा भी कोई स्टूडेंट्स होगा जैसा उनका मन में ऐसा रहेगा, नहीं सर मुझे जॉब नहीं करना है, सर मुझे खुद से कुछ करना है, मेरा खुद का कंपनी बनाना है, खुद का प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको उसमें भी काफी सारा अपॉर्चुनिटीज है। राइट फ्रॉम बिकमिंग अ कॉस्ट ऑडिटर, आप कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो, आप साइन कर सकते हो स्टूडेंट्स एज अ कॉस्ट ऑडिटर, आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो, जीएसटी का भी आप काम कर सकते हो, अगर ऑडिट्स होगा, रिटर्न फाइलिंग होगा, वो कर सकते हो। हर्षद सर himself is a insolvency professional registered valuer, तो आप इंसॉल्वेंसी का काम कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आप वैल्यूएशन कर सकते हो स्टूडेंट्स। एंड बिलीव मी, वैल्यूएशन का फीस स्टूडेंट्स हैव टच 1 crore, तो उतना तक का पोटेंशियल है स्टूडेंट्स अगर आप वैल्यूएशन करते हो। लॉस एसेसर्स, सर्वेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, आर्बिट्रेटर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सर्टिफिकेशन अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि ईओयू, सेस, फॉरेन ट्रेड, कंसल्टेंसी सर्विस। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस में भी इतना ज्यादा स्कोप है स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। बट लेकिन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस में आपको एक्सपीरियंस लगेगा, वो थोड़ा टाइम के बाद ही आएगा। बट अगेन स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट many companies require a consultant who can provide them the cost and management accounting services. So practice में भी students बहुत स्कोप है आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स जॉब, बहुत लोग का स्टूडेंट्स ये तो डाउट होगा ही कि एज फार एज द जॉब इज कंसर्न, लेकिन स्टूडेंट्स एक और डाउट होगा, सर व्हाट विल बी द सैलरी पैकेज।
Now students, coming to the salary package, let me make this very clear students. हमारा इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट्स करवाता है स्टूडेंट्स। कैंपस प्लेसमेंट्स आपने सिर्फ एमबीए कॉलेजेस में सुना होगा, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट्स करवाते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिक कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज आते हैं टू हायर सीएमए प्रोफेशनल्स। एंड स्टूडेंट्स, हमारा ये रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स को जॉब मिला है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, एवरेज सैलरी आपका 8 लाख पर एनम है। 8 लाख पर एनम कंपनीज ऑफर करता है फॉर अ फ्रेशर कॉस्ट अकाउंटेंट को। एक सैलरी पैकेज है 8 लाख का। एंड द हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट्स अभी तक अपने को जो मिला है सीएमए को, हाईएस्ट पैकेज इज 20 लाख स्टूडेंट्स। 20 लाख का पैकेज मिला है फ्रेशर क्वालिफाइड सीएमएस को। तो स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हो, अगर स्टार्टिंग में क्वालिफाइड होने के जस्ट स्टार्टिंग में अगर आपको इतना मिल रहा है स्टूडेंट्स, तो आप आगे जाके जब एक्सपीरियंस लोगे, आप बड़े बड़े पोजीशंस में आप वर्क करोगे, इमेजिन व्हाट विल बी योर सैलरी। एंड नॉट ओनली दैट स्टूडेंट्स, अगर आपको कैंपस में प्लेसमेंट्स नहीं मिलता होगा तो ऑफ कैंपस में भी स्टूडेंट्स आपको चांसेस बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 85 to 90% तक स्टूडेंट्स आपको जॉब मिलता है। तो ब्रॉडली स्टूडेंट सेइंग, जॉब वाइज आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सैलरी वाइज स्टूडेंट्स, स्काई इज द लिमिट, इट्स ऑल अप टू योर स्किल्स एंड आप कैसे काम करते हो। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये बहुत ही स्टूडेंट्स हम लोग ने उसको नट शेल में बनाया स्टूडेंट्स। तो आप ये मत समझो सिर्फ यही कंपनीज में जॉब है, दीज आर ऑल द टॉप कंपनी स्टूडेंट्स जिधर सीएमएस को हायर किया। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, नेस्ले, टाटा मोटर्स, आईडीबीआई, रिलायंस, सिप्ला, एचडीएफसी, एनटीपीसी, आईटीसी, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी एंड स्टूडेंट्स द लिस्ट गोज ऑन। मतलब मैं हर एक कंपनी का आपको नाम लूंगा तो स्टूडेंट्स वो आज का सेशन भी खत्म हो जाएगा। उतना सारा कंपनीज को स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटेंट्स की जरूरत है। एंड दीज ऑल कंपनी स्टूडेंट्स हैव कम टू आवर इंस्टीट्यूट फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स टू हायर न्यू क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नाउ फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिया है टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स को सारा सर्विस दिया जाए जो उनको जरूरत पड़ेगा टू कंप्लीट द कोर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे जाओगे ना, तो स्टूडेंट्स के लिए हमने अलग सा एक सेक्शन बनाया है जिसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा स्टूडेंट्स। रजिस्ट्रेशन से लेकर कोर्स मटेरियल्स, पेमेंट का, एडमिशन का, एग्जाम कैसे अपियर करना होगा, फिर आपको वेबिनार्स, रिकॉर्डेड सेशंस, फिर आपको इंफॉर्मेटिव मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक्स, आपको एग्जाम के जो पास पेपर्स हैं, सारा चीज स्टूडेंट्स आपको स्टूडेंट्स ई सर्विसेज पे दिया जाएगा। सो आपको ई लाइब्रेरी का फैसिलिटी दिया है स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट का भी पोर्टल दिया है, ई लर्निंग का भी सर्विसेज दिया है, एज वेल एज स्टूडेंट्स अगर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर जो भी चीज आपको लगेगा तो ये सारा चीज आपको स्टूडेंट ई सर्विस में दिया गया। So that is called as Students Connect portal. Next slide, madam. Yes. Now this is something students, ये जो पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, that is beyond CMA course. Beyond CMA course मतलब आपका CMA complete हुआ है, अब इसके बाद आपको क्या करना है। Now this is something where students, बहुत लोग के पास ये confusion होता है कि CMA कोर्स करने के बाद सर क्या करें। So the best way to do it students is first complete the CMA course and then see students आपके पास क्या क्या opportunities है। So madam next slide. So institute students आपको CMA कोर्स के बाद आपको एडवांस स्टडीज के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज दिया है स्टूडेंट्स। एडवांस स्टडीज मतलब अगर आपको डेटा एनालिटिक्स सीखना है स्टूडेंट्स, डेटा एनालिटिक्स जो अभी का 20th सेंचुरी का जो न्यू एक जॉब आया है डेटा एनालिटिक्स को, सैप का अगर आपको एडवांस सैप करना है, आर्बिट्रेशन करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, ये इंजीनियर्स के लिए, अगर जो कोई इंजीनियर ये कोर्स करता है तो उनके लिए भी स्टूडेंट्स एक डिप्लोमा बनाया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, जो आपको जॉब के लिए और आपके करियर ग्रोथ के लिए और भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय आवर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। अगर स्टूडेंट्स आपको एडवांस एक्सेल सीखना है स्टूडेंट्स, अगर आप जॉब पे जाते हो वहां पे बहुत सारा काम आपका एक्सेल में होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। आपको थोड़ा सा एक नॉमिनल फीस पे करना पड़ेगा,
वो कोर्स करते वक्त स्टूडेंट्स आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा जो आपको करियर में काम आ जाएगा, आपके जॉब्स में काम आ जाएगा। अगर आपको डिप्लोमा करना है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वैल्यूएशन में इंटरेस्ट है, वैल्यूएशन एरिया में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है वैल्यूएशन में, दिस डिप्लोमा कोर्स गिव्स यू दैट नॉलेज एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। नाउ ये जो कोर्सेस है ना स्टूडेंट्स, ये इंस्टीट्यूट का पाइपलाइन में है, इंस्टीट्यूट अभी इसको डेवलप कर रहा है, बिकॉज ये सब सर्टिफिकेट कोर्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपको जॉब्स में बहुत सारा काम आने वाला है। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन इंड एएस, फॉरेंसिक ऑडिट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स ये सब जो है ना, जो अभी का लेटेस्ट नया फील्ड है स्टूडेंट जॉब्स में, कॉमर्स फील्ड की बात कर रहा हूँ, जहां पे स्टूडेंट्स आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। सो इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि आपको अगर इसका नॉलेज चाहिए तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट देमसेल्व्स इज प्रोवाइडिंग यू ऑल दिस कोर्सेज। आपको एक फीस देना पड़ेगा, एक 100 to 200 आवर्स का कोर्स रहेगा। आप कोर्स करो, एग्जाम पास करो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन योर कंपनीज एंड आपको वो एरिया में जॉब करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। टैक्सेशन को स्टूडेंट्स, अगर आपको टैक्सेशन नॉलेज को आपको अपग्रेड करना है, आपको टैक्सेशन नॉलेज को बढ़ाना है, यू वांट टू इंक्रीज द टैक्सेशन, अगर आपको टैक्सेशन में कंसल्टेंसी करना है, प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, दीज कोर्सेज इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। जीएसटी के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स, एडवांस कोर्स ऑन जीएसटी, टीडीएस के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स, रिटर्न फाइलिंग, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करना है उसका पूरा डिटेल दिया जाता है। इवन स्टूडेंट्स, आवर इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग क्रैश कोर्स ऑफ जीएसटी फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आल्सो, एडवांस कोर्स ऑन जीएसटी ऑडिट, असेसमेंट प्रोसीजर्स। इनकम टैक्स का असेसमेंट जब होता है ना, अगर आपने रिटर्न फाइल किया, अगर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया तो नोटिस आता है, तो नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है, नोटिस को कैसे एड्रेस करना है, इनकम टैक्स ऑफिस में जाके आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सारा चीज स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स में नॉलेज दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बीएफएसआई कोर्स स्टूडेंट्स, उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीएफएसआई इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो सेक्टर है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना स्टूडेंट्स, वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को उसका नॉलेज आना जरूरी है। सो इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स भी इंस्टीट्यूट दिया जाता है, कंकरेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स, क्रेडिट मैनेजमेंट, ट्रेजरी एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। तो अगर आपको वहां पे करियर बनाना होगा, सीएमए कोर्स होने के बाद अगर आप ये कोर्स करते हो, डेफिनेटली नॉट ओनली जॉब स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी बैंक्स एंड इंश्योरेंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। Now students, as far as valuation is concerned, I want to tell you, valuation students पहला एक प्रोफेशन नहीं था, बट अब भी स्टूडेंट्स से वैल्यूएशन स्टूडेंट्स एक रेगुलेटेड प्रोफेशन बन गया है। सो दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स हेल्प्स यू टू एंश्योर दैट आप वैल्यूएशन का कोर्स परस्यू करो। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीएमए का एक आरवीओ इंस्टीट्यूट है, which institute is giving you the valuation course। स्टूडेंट्स, तो वैल्यूएशन कोर्स के साथ आप वैल्यूएशन में एक करियर बना सकते हो स्टूडेंट्स। सो बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद आईसीएमएआई आरवीओ। आप वैल्यूएशन का कोर्स करो, फिर एग्जाम पास करो स्टूडेंट, देन यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आप कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हो, एट द सेम टाइम यू कैन एंश्योर दैट यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल वैल्यूअर आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इंसॉल्वेंसी में स्टूडेंट्स अगर आपको करियर बनाना होगा, तो आपको स्टूडेंट्स उसके लिए इंसॉल्वेंसी, अपना इंस्टीट्यूट का एक एजेंसी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आईपीए, वहां पे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स ये आप अभी नहीं कर सकते हो, फॉर दिस यू नीड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स 10 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप इंसॉल्वेंसी बन सकते हो। एंड इंसॉल्वेंसी में स्टूडेंट्स बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम you have to register yourself with IPA of the institute. Next slide, madam. Next slide.
So this is students. So this is all the chapter network students. So जैसा मैंने आपको बताया, there are 4 chapter students. तो ये 4 chapters में students पूरा 110 chapters are spread out. तो हर एक रीजनल काउंसिल में स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 25 to 30 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स. सो वेस्टर्न में अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स, बहुत सारे चैप्टर्स है. सदर्न में है, ईस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट 110 chapters spread across all the 4 regional councils. Next slide, madam. And these are the 4 regional council students. So आप लोग कहाँ से एडमिशन लेते हो उसके ऊपर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा. अगर आप साउथ से हो तो सदर्न इंडिया रीजनल काउंसिल से आपको एडमिशन लेना है. स्टूडेंट्स, अगर आप ईस्टर्न इंडिया में हो, अगर आप ईस्ट से हो तो आप वहां से एडमिशन ले सकते हो. अगर आप दिल्ली, पंजाब वो साइड में हो तो आप नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में एडमिशन ले सकते हो. एंड इफ स्टूडेंट्स यू आर इन महाराष्ट्र, ओके, सो यू कैन गेट रजिस्टर्ड विद वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल. स्टूडेंट्स, उसका जो ऑफिस है वो फोर्ट में है, मुंबई में, रोहित चेम्बर्स. आपको ईमेल, वेबसाइट सब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फोन नंबर्स भी आपको दिया है. सो यू कैन गेट इन टच विद द WIRC और वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. एंड जैसा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, चैप्टर्स जो था वो इंडिया में था स्टूडेंट्स. तो अगर आपको बाहर जाना है, इंडिया के बाहर, एंड यू वांट टू स्टिल परस्यू द कोर्स, तो स्टूडेंट्स आपको इंस्टीट्यूट ये ऑप्शन देता है. आउटसाइड सेंटर्स है स्टूडेंट्स, बहरेन, मस्कट, नेपाल, बोत्सवाना, कनाडा, सिंगापुर, वॉशिंगटन दैट इज US, जाम्बिया, दुबई, टांजानिया. एंड स्टूडेंट्स एक और सेंटर ऐड हो चुका है स्टूडेंट्स रिसेंटली, दैट इज इन लंदन. so that is the 11th overseas center of our institute. So अगर आप स्टूडेंट्स बाहर भी जाते हो, आप बाहर से भी आप CMA कोर्स को परस्यू कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. So this is students the press coverage that we had. Our institute had done a press coverage. press में आया था स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर में, न्यूज में आया था कि हमारा नया कोर्स जो है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मच इंडस्ट्री ओरिएंटेड with the SAP training, Microsoft training, Cambridge training, e-filing. इसके वजह से स्टूडेंट्स CMA का close is as per the global standard. So this course students is now at the global level. Next slide, madam. So students, you can be a CMA, you can be a proud Indian, and for Atmanirbhar Bharat, you can be an enabler for self-reliant India. So this is from me, from the presentation side. So I request madam to please share the flow chart of the course as a summary so that the students can understand the entire course in one nutshell. Students, आपको दिख रहा है सबको? Can you see on the screen? This is the flow chart students. आपको कोर्स में एंटर कैसे करना है. फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट्स, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट्स आप एडमिशन ले सकते हो. एंड उसके बाद स्टूडेंट जैसा आपने एडमिशन लिया, आप फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करो. इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ले लो स्टूडेंट्स. एक बार इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन ले लिया, फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको करना क्या है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लेना है स्टूडेंट्स, जो 200 आवर्स का होगा. मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स या फिर आप फाउंडेशन एग्जाम पास करके आ सकते हो, या फिर आप अगले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, CA इंटरमीडिएट, CS फाउंडेशन, तो आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट्स आपको ट्रेनिंग मैंडेटरी करना ही करना है. 200 आवर्स का होगा स्टूडेंट्स, जिसमें SAP का, माइक्रोसॉफ्ट का, कैम्ब्रिज का, ई-फाइलिंग एंड नॉलेज सपोर्ट, ये सारा चीज स्टूडेंट्स 200 आवर्स का आपको करना है. ये करने के बाद ही स्टूडेंट्स यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरमीडिएट एग्जाम. अगर आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपियर करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू एंश्योर दैट यू कंप्लीट द ट्रेनिंग. एक बार वो हो गया स्टूडेंट्स, आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर दिया, यू क्वालिफाइड योर इंटरमीडिएट एग्जाम स्टूडेंट्स, आप फाइनल में एडमिशन ले सकते हो. फाइनल में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स, एग्जाम देने के पहले आपको इंडस्ट्री का ट्रेनिंग करना जरूरी है स्टूडेंट्स. 7 डेज का ट्रेनिंग होता है जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड किया जाता है. एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आपको 3 साल जरूरी है, बट टू अपियर फॉर द फाइनल एग्जाम आपको सिर्फ 15 मंथ्स करना है. 15 मंथ जैसा आपका हो गया, आप एलिजिबल होते हो फाइनल एग्जाम में अपियर करने का. आप फाइनल एग्जाम के लिए अपियर कर लो, यू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एग्जाम. एंड स्टूडेंट्स देखो, आपको 2 चीज दिया है वहां पे. आपको जॉब के लिए स्टूडेंट्स, जॉब अगर आपको अप्लाई करना होगा ना, तो इंटरव्यू में कैसे आप प्रेजेंट करना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है,
उसके लिए स्टूडेंट्स आपको प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम 12 दिन का इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको पूरा ग्रूमिंग सेशन किया जाता है। इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट होके जाना है, कैसे बात करना है, कैसे आंसर करना है, ये सारा ट्रेनिंग दिया जाए सो दैट स्टूडेंट्स आपको कैंपस प्लेसमेंट में 100% जॉब मिले। एंड स्टूडेंट्स आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस एक बार हो जाता है, फिर आप स्टूडेंट्स आप मेंबर बन सकते हो। जैसा हर्षद सर ने बताया, आप मेंबर बन जाओ स्टूडेंट्स, यू विल बिकम एसोसिएट मेंबर ACMA, एंड 5 years के बाद स्टूडेंट्स यू कैन बिकम अ फेलो मेंबर, दैट इज FCMA। एंड वन मोर अपडेट स्टूडेंट्स मुझे आपको देना था, मैडम इफ यू कैन शेयर दैट यूके एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट। स्टूडेंट्स ये रिसेंटली ये न्यूज में भी आया था स्टूडेंट्स, काफी प्रेस में कवर हुआ था, दैट CMA क्वालिफिकेशन को स्टूडेंट्स यूके NIRC, प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यूके NIRC जो है ना, एक बेंचमार्किंग होता है चेक करने को ये कोर्स कितना अच्छा होता है। सो मैडम इफ यू कैन जस्ट जूम अ बिट, थोड़ा जूम करो तो स्टूडेंट्स को दिखेगा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको दिखता होगा यहाँ पे, द यूके NIRC इज अ नेशनल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, स्टूडेंट्स यूके लंदन, जो क्या करते हैं मालूम है आपको, क्वालिफिकेशन का ना रिकग्निशन चेक करते हैं कि क्वालिफिकेशन कितना अच्छा है फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। एंड स्टूडेंट्स वी हैव गॉट द रिजल्ट, आप इंटरमीडिएट करते हो स्टूडेंट्स, तो यूके लेवल पे इट इज कंसिडर्ड एज अ बैचलर डिग्री लेवल 6। एंड अगर आप UAE जाते हो, दुबई, मस्कट, वहां पे जाओगे तो इट इज कंसिडर्ड एज लेवल 7 बैचलर डिग्री। अगर आपने फाइनल कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, तो यूके लेवल पे आपको मास्टर्स डिग्री का रिकग्निशन मिलता है। सिमिलरली UAE में ऑल्सो मास्टर्स लेवल 9। तो आप सोचोगे सर इसका क्या यूज है, स्टूडेंट्स कैसा यूज है, मैं आपको बताता हूँ। आपने CMA कंप्लीट किया, आप अगर अब्रॉड जाते हो, और अब्रॉड जाने के बाद अगर वहां पे अगर आपको कोई कोर्स करना होगा, मास्टर्स डिग्री या कोई भी यूनिवर्सिटी का कोर्स अब्रॉड का, तो स्टूडेंट्स वो लोग आपका CMA का क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द रिकग्निशन ऑफ बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, आपको स्टूडेंट्स वो कोर्स करने के लिए एलिजिबल किया जाएगा। सो दिस इज द रीसेंट स्टूडेंट्स अचीवमेंट आवर इंस्टीट्यूट गॉट from the UK NIRC, making it the global benchmark of the CMA qualification. So that's it from me, madam. So I will invite some questions, madam. अगर आप questions मुझे बताओगे, students का कोई questions होगा, definitely I'll be happy to answer them. So over to you, madam. Yeah, sir. Thank you so much, sir. Indeed, Yeah. the tagline which was mentioned below the slides, behind every successful business decision, there is always a Yeah. CMA. Absolutely. Yes. We all can vouch upon it. Secondly, you talked about sky is the limit. You have taken us and made our student to think really about such a wonderful courses. Moving ahead, you have talked about job opportunities and exposure of it, and many more, since count is actually uncountable. Lastly, thank you so much, sir, for sharing such a wonderful slides and efforts of yours, sir, expressing gratitude. We are really thankful to you, sir, for being with us. Thank you, sir. Thank you so much. Now Madam. I request Assistant Professor Maushmi Saraf ma'am to give vote of thanks. Thank you so much, Gayatri ma'am. I, Assistant Professor Maushmi Ajay Saraf of KBP Degree College, Thane, would like to sincerely thank Chairman of WIRC ICMAI, CMA Harshad Deshpande sir, today's speaker CMA Binoy Thomas sir. It is a rare pleasure to hear from people like you who have such a huge bank of knowledge and practical experience. It was a very motivational session, sir. Also, special thanks to Shri DG Vanjari sir for guiding us right from start to conduct this webinar. I also thank our chairman Sachin More sir, our principal Dr. Sunil Karve sir, vice principal Santosh Gavde sir. Last but not the least, special thanks to our teaching, non-teaching staff, our students organizing team who done wonderful PR and execution for this webinar. Thank you so much all of you for joining this session. And thank you.